गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सभी का एचपीटेट एग्जामिनेशन था। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा। मेरे पास है बुकलेट सीरीज़ बी। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो शुरुआत करेंगे साइकोलॉजी सेक्शन के साथ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ थिंकिंग। So we have four options and the right option is D, concrete thinking. Next question is which of the following factors affecting learning is related to the process of learning? So out of four options, second option, option number B is the right answer. The next question is educational psychology helps a teacher to. We have four options and the right one is option D, all of the above. The next question is if a student tries to solve a problem systematically and by following some planned steps, he is using dash. Option B is the right answer. He is using problem solving approach. The next question is to enhance creativity among students, teacher should not. Option number D, enhance hesitation and fear. The next question is criticism is an example of dash. Option D is the right answer. Criticism is the example of negative motivation. And the next question is according to Piaget, an individual passes through dash stages of cognitive development. The right answer is option B, four stages. Which of the following is the cause of educationally backwardness among children? Option D, all of the above are the reasons of educationally backwardness among students. The next question is the interests of an individual are influenced by dash. The right answer is option number D, all of the above. The next question is dash is helpful to enhance imagination of students. Option B is the right answer. Storytelling method is helpful to enhance their imagination power. The next question is the major goal of psychology is option D is the right answer, all of the above. The next question is which law of learning emphasizes the need of repetition in learning? And the right answer is option B, law of exercise. जितनी बार हम अभ्यास करते जाएंगे हमारी लर्निंग बढ़ती जाएगी. Next question is which of the following is an external factor influencing human growth and development? So the right option is option B. Next question is exceptional children are dash. So all the children given here are exceptional children. So the right option will be option D, all of the above. Next question is Stanford Binet test of intelligence is a type of dash. This is a type of individual group test. So option A will be the right answer. Next question is in dash the conditions are controlled. Right answer is option A, experimental method. Next question is which of the following is a kind of applied psychology? The right answer is option C, educational psychology. The next question is who belongs to school of behaviorism? Option C is the right answer. J.V. Watson, also known as the father and founder of behaviorism. The next question is according to Piaget, during which stage there is lack of language in a child? बच्चा किस अवस्था में होता है जब उसमें भाषा का अभाव होता है? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. The next question is in which kind of reasoning the principles are formulated on the basis of specific examples, and option A is the right answer. Next question is who propounded group factor theory of intelligence? The right answer is option C, Thurston. The next question is if the IQ of an individual ranges between 75 to 90, he is termed as dash. आई एम सॉरी गाइस, ये क्वेश्चन मुझे भी कहीं इसका सही आंसर नहीं मिला है तो मैंने अभी डाउट में रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गिफ्टेड चिल्ड्रन. ऑप्शन 4 में से ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टेट्स लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ progressive behavior adaptations? The right answer is option B.
Next question is, who says educational psychology describes and explains the learning experiences of an individual from birth through old age? This statement has been given by Crow and Crow. The option C is the right answer. Next question is, who propounded theory of classical conditioning of learning? The right answer is Pavlov. The option D is the right answer. The next question is, if the learning in one situation hinders the learning in another situation, it is called negative transfer of learning. Option B is the right answer. Next is the which of the following stage is known as the stage of stress and strain? It is adolescent stage. Option C is the right answer. Next is the according to Piaget in which stage a child begins to acquire vocabulary. The option B is the right answer. Next question is, dash used to assess one's special bent for an activity. The right answer is aptitude test. साइकोलॉजी सेक्शन यहीं पर ख़त्म हुआ. अब हम शुरू करते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इट्स हमीरपुर. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश भारत का कौन सा राज्य बना? 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को स्टेटहुड प्राप्त हुआ तो ये हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? रोहतांग दर्रा. राइट आंसर इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत क्षमता है? सतलुज नदी, जो हिमाचल की सबसे लंबी नदी है और जिस पर सबसे अधिक डैम्स बने हैं. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, शिमला. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, माननीय न्यायमूर्ति M.H. बेग, मिर्ज़ा हमीदुल्ला बेग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कब बना? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 नवंबर 1956 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुजानपुर टिहरा का किला किसने बनवाया? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अभयचंद ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले का गठन कब हुआ? जो बिलासपुर जिला है वर्तमान में, वो हिमाचल प्रदेश में कब मिलाया गया? राइट आंसर इज 1 जुलाई 1954 और ये हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालका शिमला रेलवे कब बनी थी? एंड द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1903 में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टमाटो उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोलन. अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में जल की मात्रा की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए, चिनाब. इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि सतलुज है या चिनाब है. सतलुज सबसे लंबी है लेकिन सबसे ज़्यादा वाटर कैरी चिनाब करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी महिला सदस्य हैं? इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है अभी. मुझे लगता है कि 2 हैं. एक रीना कश्यप जी हैं पच्छाद से, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है वो आप प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? उत्तर है 1939. ऑप्शन बी इसका सही आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स ये बुक किसने लिखी? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जे हचिनसन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम. अगला प्रश्न है, कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? ये अधिकतर 3 लोगों को दिया जाता है, लेकिन 2024 में ये अधिकतर 5 लोगों को दिया गया था. अगला प्रश्न है, किसने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? ये एक राजनीतिक पार्टी थी, इसकी स्थापना की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने. ऑप्शन ए सही उत्तर है. अगला प्रश्न है, यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? यूक्रेन की राजधानी है कीव. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? जो योजना आयोग था वही नीति आयोग में बदला गया था और ये हुआ था 1 जुलाई 2015 में.
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 25 जनवरी इसका सही उत्तर है। और हिमाचल प्रदेश के लिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तिथि को हमें राज्यत्व का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? ये हैं रवि अग्रवाल। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय पुरातत्व के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? पेनिनसुला। ये है अरब प्रायद्वीप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2024 में विंबलडन चैंपियनशिप में किसने पुरुषों का एकल खिताब जीता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्में हैं? इसका सही उत्तर होगा गेहूं। ये वीट की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस वर्ष भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान ने कार्य करना शुरू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1965। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोका आंदोलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2024 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन से देश ने की थी? इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 के ओलंपिक्स हुए थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जनरल नॉलेज का सेक्शन ख़त्म होता है और इंग्लिश का शुरू। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको थोड़ा देख कर, क्योंकि उसमें ऑब्लिगेशंस और अंडरलाइन वगैरह किए हुए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को देख सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो और उनके सही उत्तर यहाँ से नोट कर सकते हो। तो इसमें 61 का डी, 62 का सी, 63 का सी, 64 का सी, 65 का ए ऑप्शंस इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66 का सी, 67 का बी, 68 का बी, 69 ए, 70 का बी, 71 का ए, ये ऑप्शंस इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, इसमें ऑप्शन सी सही है। 73 में डी सही है। 74 बी सही। क्वेश्चन नंबर 75 टू 78 पैसेज बेस्ड है, जिनमें 75 ऑप्शन सी सही है, 76 ऑप्शन बी, 77 ऑप्शन बी, 78 ऑप्शन डी इनमें सही ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79 ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 80 ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 81 ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 82 ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 83 ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 84 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 85 ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 86 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 87 ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 88 ऑप्शन ए, 89 ऑप्शन सी, 90 ऑप्शन डी। These are the right answers of these questions. Next and last section, social studies. पहला प्रश्न है, सरकार के डैश अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही उत्तर है 65%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नेपाल का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है, किस देश में 2 दलीय व्यवस्था है जहां पर सिर्फ 2 दल हैं और उनके बीच में चुनाव होते हैं? ये है ब्रिटेन में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संसार में अधिकतर देशों में डैश सरकार मौजूद है? विश्व के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकार मौजूद है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में डैश शासन चलाते हैं? लोकतंत्र में लोग शासन चलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष 2023 में कौन सी आपदा आई थी? तो आप लोगों को पता होगा 2023 में बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई थी, बहुत नुकसान हुआ था। ये थी हैवी रेन, भारी बारिश हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भूकंप रोधी भवन की आकृति कैसी होनी चाहिए? इस प्रश्न का मुझे कहीं भी सही उत्तर नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल इसका आंसर डाउट में है। अगला प्रश्न है, भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसने कहा मैं ही राज्य और मेरे शब्द ही कानून हैं? ये कहा था फ्रांस के एक शासक ने और उनका नाम था लुईस 14वां। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सोवियत रूस के किसान को क्या कहते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुलक कहते थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है उत्तरी मैदान, क्योंकि ज़्यादातर नदियाँ इस क्षेत्र से होकर बहती हैं, गंगा यमुना। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? ये है 2525 किलोमीटर और यहाँ पर जो इसका सबसे नज़दीकी उत्तर है वो है 2500 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल सदस्य 3 होते हैं। एक इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 उसके सहयोगी इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, ऊपरी सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन हैं? इनका नाम है श्री जगदीश धनखड़। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? इनकी संख्या है 6। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? ये है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी धनानंद। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, बिंबिसार कहाँ का शासक था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मगध। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश का एक महान शासक था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था में कितने वर्ण हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला प्रश्न है, गुजरात का प्राचीन नाम क्या था? गुजरात का प्राचीन नाम था लाट। ये इसके एक भाग का नाम था और इसका प्राचीन नाम भी कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, द्रौपदी कौन थी? पांडवों की पत्नी, समुद्रगुप्त की पत्नी, कौरवों की पत्नी, एकलव्य की पत्नी। सही उत्तर है ऑप्शन ए पांडवों की पत्नी। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश, भोपाल में एक सांची नाम के गांव में। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा भोपाल। अगला प्रश्न है, स्वामी महावीर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के साथ भारत कौन आया था? ऑप्शन डी अल बरूनी। और उसने तहकीक मालिल हिंद, जिसे तारीख ए हिंद भी कहा जाता है, नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है होमो सेपियंस। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, उस इतिहासकार का नाम बताओ जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। ये था मिन्हास ए सिराज। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिलेखागारों में। अगला प्रश्न है,
पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1175 से 1192। 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में ये मोहम्मद गौरी से हार गए थे। उस व्यक्ति का नाम बताओ जो 13 वर्ष की आयु में सम्राट बना। ये सम्राट था अकबर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। शाहजहां के आरंभिक वर्षों में उसकी राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है आगरा। ऑप्शन बी, और कुछ वर्षों के पश्चात वो अपनी राजधानी को दिल्ली ले गया था। अगला प्रश्न है, राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ये दक्षिण का एक राजा था, राजा राजराज चोल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए राष्ट्रगान के रचयिता थे। अगला प्रश्न है, ओखली और मूसल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए अनाज को पीसने के लिए। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाणभट्ट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई थी? ब्रिटिशर्स जब भारत में आए उन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? ये लगाई थी हुगली नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में 1651 में। और जो हुगली नदी है वो गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है। अगला प्रश्न है, पलासी की लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए 1757 में। अगला प्रश्न है, बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शेर ए मैसूर किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था टीपू सुल्तान को, जो मैसूर के राजा थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया। तो डलहौजी ने एक नीति लाई थी, विलय की नीति। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। कौन सा देश नील की खेती करता था? ये देश था भारत। भारत के किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में सम्मिलित हैं इनमें से कौन कौन भारत की संसद का हिस्सा हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता कौन होता है? जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ताधारी दल का नेता होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कितने मनोनीत सदस्य होते थे? इसका सही उत्तर है 2। पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को मनोनीत किया जाता था, लेकिन 2020 में ये प्रावधान समाप्त किया गया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? ये है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कितने वर्ष तक की आयु के बच्चों से घर या उद्योगों में काम नहीं करा सकते? इसका सही उत्तर है 14 वर्ष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 बाल श्रम का विरोध करता है। अगला प्रश्न है, दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। भगत सिंह की आयु कितनी थी जब उन्हें फांसी दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। उनकी आयु 23 वर्ष थी। सरदार भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1927 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ये किसने कहा हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है? ये कहा था पंडिता रमाबाई ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी थी? इसका सही उत्तर है वुड्स स्टील से बनी थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का झंडा कितने रंग का था? फ्रांसीसी क्रांति में जो झंडा यूज़ किया था वहाँ के लोगों ने, उसमें 3 रंग थे, नीला, सफ़ेद और लाल। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 1928 में। अगला प्रश्न है, टोक्यो का पुराना नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एडो। टोक्यो का पुराना नाम था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किसने चलाया था? चिपको आंदोलन चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा।
इसमें उनके 2 साथी भी साथ थे, लेकिन सुंदरलाल बहुगुणा का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में 1973 को चलाया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आई एम रितिका शर्मा, अ स्टूडेंट ऑफ JCT धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो और कमेंट करके बताओ आप कहाँ के रहने वाले हो, किस कॉलेज के स्टूडेंट हो और आपका क्या स्कोर रहा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।